Hello students, this video is about chapter 3 pair of linear equations into variables. So in our previous video we came to know how we can show linear equations into variables on graph, right? So in this video we are going to check methods for solving linear equation into variables. So basically we have two methods. First one is graphically and second one is algebraically. So graphically we have three possibilities for linear equations, pair of linear equations. The equations can intersect at a point, right? They can be intersecting. The linear equations may be parallel or they may be coincident. Algebraically we have three methods for solving the linear equation. One is elimination method, second one is substitution method, and third one is cross multiplication method. So we're going to solve these three methods in our next videos. So this table I am going to explain. This one is very important for the exam point of view also. So suppose we have linear equations, pair of linear equations in two variables, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and other equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So what we have to do, we have to compare the ratios. हमें ये ratios compare करनी है. Like suppose a1 upon a2, we will find a1 upon a2, then we will find b1 upon b2, and then we will find c1 upon c2. So first graphical representation हमारी जो intersecting lines होती हैं, fine, उसके लिए क्या condition है? जो हमारी रेशियो होगी a1 अपॉन a2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. मीन्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा. अगर ये कंडीशन आती है दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी लाइंस की कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. एंड इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन वी हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, बिकॉज लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? वी विल गेट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. वन सोल्यूशन वो कैसा होगा? यूनिक होगा. आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे बट आपका आंसर यूनिक आएगा, सेम आंसर आएगा. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जब मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस भी ये होती हैं. फाइन. अगर हमारी तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस हमारे पास कैसी होंगी? को इंसिडेंट लाइंस. को इंसिडेंट लाइन मीन्स द लाइंस विल लाई अपॉन वन अनदर. और इस केस में हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, बिकॉज आप कहीं पर भी पॉइंट लगाएंगे यू विल गेट सोल्यूशंस. सो कोइंसिडेंट लाइंस में we will get infinitely many solutions, and these lines are also known as consistent lines. Fine. And if we have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but these are not equals to c1 upon c2, so in that case lines हमारे पास कैसी होंगी? We will get parallel lines. And if lines are parallel, that means they are not intersecting, they are not coincident, तो हमारे पास solution नहीं होगा. We will get no solution. नो सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट. यानी लाइंस हमारे पास कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस दे विल आस्क check by comparing ratios whether lines are intersecting, coincident or parallel lines. So what you have to do, you have to find out the ratios and then you have to check कौन सी हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है. देन यू विल से डायरेक्टली इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइंस है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मीन्स डू यू हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस और नो सोल्यूशंस. Also the examiner may ask whether the given pair of linear equations are consistent or inconsistent. In that case what you have to check whether the lines are intersecting, coincident or parallel, because intersecting and coincident होंगी तो हमारे पास lines कैसी होंगी? consistent. but अगर parallel lines होंगी तो वो कैसी होंगी? inconsistent. आप इसको एक वे से और रिमेंबर कर सकते हो कि अगर आपके पास सोल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो सिंगल हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो,
तो लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट होंगी. बट इफ़ यू आर गेटिंग नो सोल्यूशन दैट मीन्स लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू चेक, we have a pair of linear equation x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0. You have to check whether the lines are intersecting, parallel or coincident. So for that you have to compare the ratios. So we will find out a1 upon a2. a1 here is 1 and a2 is 3, so it will become 1 by 3. Then we will find out b1 upon b2. So b1 is minus 2 and b2 is 4. Minus 2 by 4. If you will simplify it, you will get minus 1 by 2. And then we have c1 upon c2. As c1 is absent here, so we will write 0, and instead of c2 we will write minus 20. So 0 by minus 20 is 0. Now compare. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, right? Since these ratios are not equal, so हमारे पास लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और पैरेलल और कोइंसिडेंट वो हम चेक कर सकते हैं. या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सिंस इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो कैसा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा. ये भी चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या सिंगल यूनिक सोल्यूशन. सो इंटरसेक्टिंग है तो कैसा सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन दैट इज यूनिक. नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला है कि आपको ग्राफिकली ये शो करना है. ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने मैथ्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है, प्लस जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं. आपको चेक करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं. फाइन. सो वी विल कंसिडर लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी y. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़. सो वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन. y को हम LHS में शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. लेट्स से दिस इज़ आवर फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, वी नो दैट टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं, 10. सो x प्लस वाई, गर्ल्स प्लस बॉयज़, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10. ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन. फाइन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है आपको ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें दोनों इक्वेशंस को लेके ग्राफ शो करना है. सो लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वी हैव टू फाइंड 3 वैल्यूज़. हम 2 वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे, 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ग्राफ हमारा क्लियर हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन. जब इसमें आप x 0 पुट करोगे यू विल गेट y इक्वल्स टू माइनस 4. फाइन. नाउ वी विल पुट y इक्वल्स टू 0. y जब हम 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में x हमारे पास कितना आ जाएगा, 4. फाइन, लाइक दिस. एंड इफ विल पुट y इक्वल्स टू 1, y 1 इसमें पुट करेंगे तो x हमारे पास कितना आ गया, 5. वी हैव टू मेक दिस टेबल. Similarly, we are considering this second equation, x plus y equals to 10. So first of all let put x equals to 0, तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, 10. फाइन. सेकेंड हमने लेट किया पुट y equals to 0 इस इक्वेशन में, तो x कितना हो जाएगा, 10. एंड थर्ड हमने कंसिडर कर लिया कि लेट y equals to 5, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, 5. हमारे पास 2 टेबल्स आ गए. क्लियर. वैल्यूज़ आई एम टेलिंग यू, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू मेक अ ग्राफ. अब हमारी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, 10 तक है. फाइन. x भी 10 है, y भी 10 है. नेगेटिव में y हमारे पास -4 है, सो वी हैव टू मेक द ग्राफ. सो सपोज दिस इज़ द x एक्सिस, दिस वन इज़ द y डैश x डैश. विल टेक द पॉइंट्स 0 अप टू 10, -1 to -10, -1 to -10, 1 to
10 on y-axis. So our first point was 0 minus 4. So x 0 है, y minus 4 है, so ये हो गया 0 minus 4. Second point was 4 0 and third point हमारे पास था 5 1. 3 पॉइंट्स हमने लगाए. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की है हम वो इक्वेशन मेंशन करेंगे. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. देन वी विल प्लॉट द पॉइंट्स फॉर सेकेंड इक्वेशन. तो हमारे पास पॉइंट था 10 0. फाइन. देन वी हैव अ पॉइंट 5 5 एंड देन वी हैव अ पॉइंट 0 10. तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. अब ये जो लाइन है जिस इक्वेशन के लिए वी विल राइट दैट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सॉरी, ये हमारी फर्स्ट के लिए थी और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ये. अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. वी हैव टू फाइंड आउट कि किस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. सो यहाँ पर x हमारे पास कितना है 7 एंड y इज़ 3. सो राइट दिस पॉइंट एज 7 and 3. तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया. लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे 7 and 3. सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने कंसिडर किया था x और x हमारे पास कितना आया 7. नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने कंसिडर किया था y and y इज़ 3. सो यू कैन चेक 7 प्लस 3 टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं. फाइन. दूसरा इक्वेशन में ये भी बोला था कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं. सो 3 + 4 इज़ 7.